A very good afternoon, everyone. I hope all of you are doing good. I'm Sumita Panigre, and on behalf of the Holy Edition family, I welcome you all to today's class. I'm teaching you Science Class 8, and we are reading Chapter 11, that is Force and Pressure. And this is your fifth part. Okay? So, if you haven't watched any of the videos regarding this, you may go to the playlist and check it out. So, let's see what we're going to read today. But yes, before that, let me remind you that eTuition is providing quality education for your better tomorrow. So don't forget to subscribe our YouTube channel or download the app from the Play Store. Okay, so let's see what we have today to read. Today we are going to discuss liquid pressure and pressure exerted by liquid gases. Okay, so these are the two topics that we are going to cover today. So first is liquid pressure. Now what is liquid pressure? As the name suggests, there must be certain sort of pressure that is exerted by the liquid. As we already know, liquid does not have any particular shape, right? It takes the shape of the container in whichever it is placed, right? Okay. Now, whenever there is certain sort of pressure that is exerted by liquid, it is simply said to be liquid pressure. The pressure that is exerted by liquid. Okay. Now, what is written? Let's see. Let's read. The pressure exerted by a stationary liquid kept in a container at any point inside the liquid is known as hydrostatic pressure. Now, if there is any particular pressure, like any liquid which is kept in a container, so it is of course not flowing, so it is stationary, and there the liquid inside the particular container is exerting certain sort of pressure, right? And that particular pressure is said to be hydrostatic pressure because the pressure is stationary, because the liquid is stationary, right? So what exactly happens over there? There is a container, you have kept water inside it. Water is definitely putting some pressure to the walls of the container, and that particular pressure that is being exerted by the liquid, stationary liquid, to that of the walls of the container, it is said to be hydrostatic or liquid pressure. Okay, hydrostatic pressure. Hydro means water and static means because it's stationary. Next, the liquid pushes on every surface in contact with it, no matter which way the surface is facing. Now, what this exactly means? The liquid pushes on every surface in contact with it. Now, the particular liquid which is kept inside the container is exerting pressure in every particular direction, in every particular point of the container to which it is touched. जो पर्टिकुलर लिक्विड आपका है कंटेनर के अंदर, जहाँ जहाँ सरफेस में वो टच कर रहा है, हर जगह देयर इज सर्टेन शॉर्ट ऑफ pressure that is being exerted by that of the liquid to that of container. Okay, no matter which way the surface is facing, it does not simply it means. Now see the picture. In this picture, the particular one particular person is watering. In case of this watering, wherever the surface, the liquid touches the surface of the container, every point there is certain sort of pressure that is exerted by that of the liquid, right? So this is said to be hydrostatic pressure. Next, pressure exerted by liquid gases. Now this point, what is this? Pressure exerted by liquid gases. अब क्या ये जो pressure है, that is exerted by certain sort of liquid gases. Let's read. Liquid's pressure on the bottom of the container does not depend on the area of the bottom. It acts perpendicular to the base. Okay. Now see this one. तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी लिक्विड जो होता है, दैट इज अ प्रेशर, द लिक्विड डज नॉट पुट एनी sort of pressure like to the bottom of the container. Like in this particular container, liquid is kept. So liquid is not putting any much more pressure to that to the bottom of the container. Where it is then putting pressure? It does not depend on the area of the bottom. Like pressure जो भी liquid exert करता है container के, वो bottom जो मतलब नीचे वाले portion होता है, उसमें pressure exert नहीं होता, उसमें उसके area में pressure हमारा depend नहीं करता. ये परपेंडिकुलर टू द बेस काम करता है. 90 डिग्री मतलब बेस के 90 डिग्री में ही प्रेशर पुट होता है. पूरा बेस के प्रेशर में, बेस के एरिया के हिसाब से प्रेशर पुट नहीं होता, बट बेस के 90 डिग्री में प्रेशर पुट होता है. Next, liquid's pressure at any point inside the liquid depends upon the density and the height of the liquid column above that point.
तो सेकेंड पॉइंट क्या है, लिक्विड प्रेशर एट एनी पॉइंट इनसाइड द लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी। तो जो भी पर्टिकुलर लिक्विड एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर आपके कंटेनर में, वो किस चीज़ में डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है हर एक पॉइंट में आपका प्रेशर एक्सर्ट करता है लिक्विड, अलॉन्ग विद दैट डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड में। ठीक है, डेंसिटी क्या है, कितना कितना ज़्यादा थिकनेस है लिक्विड का, नेचर क्या है, उसी के हिसाब से लिक्विड जो होता है सरफेस में प्रेशर एक्सर्ट करता है। एंड द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम अबव दैट पॉइंट, और जो हाइट जितना हाइट में होता है उसमें डिपेंड करता है। सो टू थिंग्स, फर्स्ट थिंग होता है लिक्विड जो होता है बॉटम ऑफ द कंटेनर के एरिया में डिपेंड नहीं करता बट परपेंडिकुलर टू द बेस इट एक्ट्स। द सेकेंड पॉइंट इज दैट इट डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड द हाइट। ओके, हाइट कितना हाइट का है और कितना डेंसिटी है लिक्विड का, उसी हिसाब से सरफेस में या सरफेस में प्रेशर एक्सर्ट करता है। नेक्स्ट, लिक्विड्स एक्सर्ट साइड वाइज प्रेशर। अब लिक्विड जो होता है दैट इज साइड वाइज प्रेशर करता है, ऐसे नीचे ऊपर डाउन अप ऐसे करके प्रेशर एक्सर्ट नहीं करता, बट कहाँ पे करता है, दैट इज साइड वाइज जो होता है प्रेशर एक्सर्ट करता है, साइड में प्रेशर एक्सर्ट करता है ऐसे। ओके, now an external pressure applied on a liquid in a closed container is transmitted uniformly throughout the liquid. Now what is the last one? An external pressure applied on a liquid in a closed container is transmitted thoroughly through the liquid. अब क्या होता है, कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर आप अप्लाई करते हैं, सपोज यू आर होल्डिंग अ बॉटल, आप होल्ड बॉटल को प्रेस करते हो, सो वेन एवर यू आर पुटिंग सम एक्सटर्नल प्रेशर टू दैट ऑफ द बॉटल, तो ये होता क्या है, जो भी पर्टिकुलर लिक्विड अंदर जो प्रेशर एक्सर्ट करता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं होता, ऑलरेडी पानी है बॉटल के अंदर, यू आर अप्लाइंग सर्टन शॉर्ट ऑफ प्रेशर, नाउ व्हाट हैपन्स, in every point to which this water is being touched puts a pressure, first point। second point क्या हुआ, ये होने के बाद प्रेशर अप्लाई कर लेने के बाद क्या हुआ, अगर हमने बाहर से बॉटल को स्क्वीज करने की कोशिश की, वी आर पुटिंग सम एक्स्ट्रा प्रेशर टू दैट ऑफ द बॉटल, तो एक्स्ट्रा प्रेशर करने से वो जो इनसाइड वाटर होगा वो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा यूनिफॉर्मली ताकि कुछ फटे ना। ओके, the water bottle burst नहीं होता, just because water distribute the pressure of the external force that has been applied uniformly. Okay, all right, next, so these are certain sort of like definition है। अब देखो ये वाला जो पर्टिकुलर रबर बैलून लगा हुआ है, ठीक है, तो पहले वाले में क्या होता है, दिस इज एन एक्सपेरिमेंट, ओके, दिस इज एन एक्सपेरिमेंट, ओके, सी द लास्ट पिक्चर, ये तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड गैसेस है। ठीक है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड गैसेस में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले में एक रबर बैलून अटैच हुआ है, तो उसका लिक्विड कॉलम जो होगा फर्स्ट थोड़ा सा होगा, देन व्हेन वी इन्फ्लेट द रबर बैलून, ठीक है, रबर बैलून जब हम थोड़ा सा और मतलब फुलाएंगे तो क्या होता है, यहाँ जो है एयर जो है पार्टिकल्स वो प्रेशर अप्लाई करती है। अब एयर पार्टिकल्स ने प्रेशर अप्लाई किया, जो लिक्विड कॉलम थोड़ा सा था अब थोड़ा सा वाटर लेवल बढ़ गया है, वाटर लेवल एग्जैक्टली नहीं बढ़ा है बट यहाँ पे क्या हो गया, एयर की मात्रा बढ़ गई, दैट्स वाई दैट इज व्हाट दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट, दैट प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय दैट ऑफ एयर ऑल्सो। ठीक है, अब देखो फोर्थ वाले पिक्चर में, देखो फोर्थ वाले पिक्चर में आप देख रहे हो कि 3 होल किए गए हैं बॉटल में, एंड तीनों होल्स में क्या हो रहा है, वाटर निकल रहा है। सो दैट इज, यू कैन सी, ये जो होता है दैट इज ऑलमोस्ट लाइक 90 डिग्री, 90 डिग्री 45 डिग्री के एंगल में वाटर रिमूव हो रहा है। ओके, सो देर इज सर्टन शॉर्ट ऑफ प्रेशर विच इज अप्लाई, तो ये वाला थोड़ा सा दूर से हो रहा है, लेकिन अगर आप ऊपर वाले पूरे होल में जहाँ से एक्चुअली वाटर है ऊपर पूरा उस पोर्शन में अगर आप होल कर दो तो वाटर कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। ठीक है, सो विल बी रीडिंग दिस अगेन। सो नेक्स्ट इज दैट प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ। ठीक है, प्रेशर किससे इंक्रीज होता है, डेप्थ, गड्ढों से, मतलब जितना गहरा उतना ज़्यादा प्रेशर। लेट्स सी, the deeper into the liquid you go, the greater the weight of the liquid above and the higher pressure। तो यहाँ से क्या पता चला, जितना ज़्यादा डेप्थ होगा, जितना ज़्यादा गहरा होगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पिक्चर दिखाया गया, इस पिक्चर में क्या है, हमने 3 होल्स किए, ऊपर वाला होल देखो, ऊपर वाला होल से जब हम पानी निकाल रहे हैं तो वो ज़्यादा दूर नहीं जा रहा है, बीच वाला होल देखो वो और थोड़ा सा आगे जा रहा है ऊपर जाने से, और जो सबसे नीचे वाला होल है वहाँ से पानी सबसे ज़्यादा डिस्टेंस में ट्रैवल कर रहा है। अब ये नीचे वाला होल इतना ज़्यादा क्यों डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि जितना ज़्यादा गहरा हो जाएगा आपका वाटर उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा,
प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, ऊपर में प्रेशर कम रहता है इसलिए ज़्यादा स्पीड से पानी नहीं आ रहा है, डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर रहा है। उसके नीचे थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर है तो थोड़ा सा ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है, और नीचे में बहुत ज़्यादा प्रेशर है इसलिए थर्ड होल से वाटर सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, बिकॉज दैट इज एक्सेसिव प्रेशर। जितना ज़्यादा डेप्थ आप नीचे जाओगे उतना ज़्यादा आपको प्रेशर मिलेगा, और दिस सेम केस हैपन्स विद दैट ऑफ द सी। ठीक है, तो आप जितना ज़्यादा गहरा जाओगे समंदर के अंदर उतना ज़्यादा आपको प्रेशर महसूस होगा। दैट्स वाई ज़्यादा अंदर हम नहीं जा सकते क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होता है। ठीक है, ऊपर ऊपर प्रेशर ज़्यादा नहीं लगेगा, बट जैसे आप नीचे नीचे जाओगे वैसे ही ज़्यादा प्रेशर वाटर का बढ़ता जाता है। ठीक है, यू कैन easily spot that particular thing from this diagram. Next. So this is again the same experiment. यहाँ पे क्या हो रहा है? ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे एक वाटर ये लिया गया है, उसमें 3 होल सेम किए गए, नोजल है, नोजल को ओपन किया जाता है, नोजल्स रखे गए हैं 3 पर्टिकुलर ये में। उसके बाद फिर कैन बात छोड़ो, प्रेशर वाटर इंक्रीजेस विद डेप्थ, वाटर रखा गया उसके अंदर। उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है। पहला वाला जब नोजल ओपन होता है, फर्स्ट वाला आपका जो पॉइंट है, तो उसमें वाटर ज़्यादा दूर ट्रैवल नहीं करता। दूसरा वाला नोजल ओपन हुआ, थोड़ा सा ज़्यादा ट्रैवल करता है, बट थर्ड वाले में सबसे ज़्यादा हाई प्रेशर ट्रैवल करता है। द रीज़न इज़ दैट जितना ज़्यादा डेप्थ बढ़ेगा उतना ज़्यादा वाटर का प्रेशर भी बढ़ता जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। नाउ प्रेशर डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। नाउ हम पढ़ चुके हैं कि जितना ज़्यादा डेप्थ बढ़ेगा प्रेशर भी वाटर का उतना ही बढ़ेगा। नाउ व्हाट इज़ अबाउट द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड? डेंसिटी का क्या केस है यहाँ पे? तो प्रेशर डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड के हिसाब से। ठीक है, तो पढ़ते हैं, द मोर डेंस द लिक्विड द हाई द प्रेशर एट एनी पर्टिकुलर डेप्थ। तो जितना ज़्यादा डेंसर होगा लिक्विड उतना ज़्यादा प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है, अब देखो, एक कैन में हमने ऑयल लिया, एक ये में, और एक में वाटर हमने लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमने ऑयल लिया तो ऑयल वाला जो है ना वो क्या हुआ, ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया, लेकिन लिक्विड वाटर वाला जो है वो ज़्यादा ट्रैवल किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, होल्स एट द सेम हाइट, हम वाटर भी सेम लेवल का लिए और ऑयल भी सेम लेवल का लिए, लेकिन वाटर जो है वो ज़्यादा क्या कर रहा है, बीइंग द मोर डेंसर वन, वो ज़्यादा प्रेशर में एक्सर्ट हो रहा है, जबकि ऑयल जो है ऑयल ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब जितना ज़्यादा आप डेंसिटी बढ़ाओगे पर्टिकुलर लिक्विड का उतना ज़्यादा प्रेशर भी एक्सर्ट होगा। ओके, द सेम थिंग, डेंसिटी बढ़ता है तो प्रेशर बढ़ता है, डेप्थ बढ़ता है तो भी प्रेशर बढ़ता है। नाउ प्रेशर डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द कंटेनर। अब कोई भी शेप ऑफ द कंटेनर में अगर आप पर्टिकुलर वाटर को रखते हो तो इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इट्स प्रेशर, वो प्रेशर को कोई इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, चाहे आप बड़े वाले कंटेनर में रखो, छोटे वाले कंटेनर में रखो, लंबे वाले कंटेनर में रखो, इट डज नॉट डिपेंड, क्योंकि प्रेशर उसमें डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, so whatever the shape or width, the pressure at any particular depth is the same। तो कोई भी शेप हो कंटेनर का कोई मतलब नहीं है, प्रेशर सेम रहता है। तो 3 चीज़ें हमने सीखी आज। पहला वाला, जितना ज़्यादा डेप्थ होगा उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा लिक्विड का। सेकेंड हमने सीखा कि जितना ज़्यादा डेंसिटी होगा उतना ज़्यादा प्रेशर होगा। और थर्ड वाला, शेप ऑफ द कंटेनर डिटर्मिन नहीं करता है आपके प्रेशर को, कोई भी पर्टिकुलर शेप में रखो आप, प्रेशर थ्रू आउट सेम रहता है। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन डेप्थ और क्या, डेंसिटी। डेंसिटी और डेप्थ अगर ज़्यादा होता है तो आपका प्रेशर भी ज़्यादा होता है। वॉट एवर द शेप और विड्थ द प्रेशर एट एनी पर्टिकुलर डेप्थ इज सेम, एज यू कैन सी इन द 4 पर्टिकुलर डायग्राम्स। पहला वाले में प्रेशर जितना है चौथे वाले में भी उतना ही, देयर इज नो चेंज बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द कंटेनर। सिंपल। बाय, लेट्स सी नेक्स्ट। नाउ दिस वाज द पिक्चर। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रेशर? प्रेशर का क्या डेफिनेशन है? डेफिनेशन ऑफ प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब आप जितना फोर्स देते हो एक पर्टिकुलर एरिया में उसी को बोलते हैं प्रेशर। ठीक है, और उसका यूनिट क्या है, पास्कल, पी। नाउ यू कैन सी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रेशर दैट हैज बीन क्लासिफाइड, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। सॉलिड में क्या होता है, पर्टिकुलर सॉलिड, जैसे कि हम कोई भी पर्टिकुलर सॉलिड फ्लोर में प्रेशर दे रहे हैं, दैट इज ऑल्सो प्रेशर, राइट। लिक्विड में हम क्या कर रहे हैं, लिक्विड में जैसे कि हमने देखा, हम एक बॉटल पकड़े, उसको हमने स्क्वीज कर दिया, दैट इज लिक्विड प्रेशर। और द लिक्विड दैट इज exerting the particular pressure on the walls of the container in which it is placed, it is again liquid pressure।
और गैशियस प्रेशर फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा एलपीजी हो गया, तो एलपीजी वगैरह क्या करता है, हम लोग उसको क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर गैस को कॉम्प्रेस्ड करके गैशियस फॉर्म में लिक्विड को रखते हैं, तो दैट इज ऑल्सो एक्सर्टिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज प्लेस्ड, इट इज अगेन गैशियस प्रेशर। तो तीन टाइप का प्रेशर हो गया तीन स्टेट्स में। ओके, नाउ वेयर इज सॉलिड प्रेशर सेम एग्जाम्पल है नाइफ एज। नाइफ एज फॉर एग्जाम्पल अगर आप अनियन काट रहे हो, तो अगर आप अनियन काट रहे हो, वी आर पुटिंग सम सॉर्ट ऑफ प्रेशर अपॉन दैट ऑफ द अनियन विच इज सेड टू बी सॉलिड प्रेशर। नाउ टायर्स ऑफ द व्हीकल, टायर्स हम चलाते हैं, जो भी हम गाड़ी चला रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो गाड़ी है उसका जो टायर है वो कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रेशर ऑन द फ्लोर दे रहा है, दैट इज सॉलिड प्रेशर। Simple. Next is liquid pressure. Now what is liquid pressure? Liquid pressure hydraulic jack होता है, जो पानी से कुछ उठाते हैं, ठीक है, ब्रेक्स पानी में लगाते हैं, लिफ्ट होता है, so these all stuffs are liquid pressure. Okay. Next comes gaseous pressure. Gaseous pressure atmospheric pressure एक है और एक compressed air है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में रबर सकर अटैचमेंट एक आता है, न्यूमैटिक्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे अच्छा। गैशियस प्रेशर रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें कुछ अमाउंट ऑफ गैस जो होता है ऑलरेडी इनसाइड होता है, विच दैट इज ऑल्सो प्रेशर ना, यहाँ पे जो गैस है इनसाइड जो जाता है दैट इज ऑल्सो एक्सर्टिंग सर्टन अमाउंट ऑफ प्रेशर टू दी वॉल्स ऑफ आवर लंग्स, सो दैट इज ऑल्सो सेड टू बी गैशियस प्रेशर। नाउ कॉम्प्रेस्ड एयर, हम कोई भी कॉम्प्रेस्ड एयर जैसे कि एरोजोल हो गया, एरोजोल को हम स्टोर करके रखते हैं, वहाँ पे क्या होता है, गैस को हम स्टोर करते हैं, सो दैट इज द गैस इज एक्सर्टिंग सर्टन अमाउंट ऑफ प्रेशर टू दैट ऑफ द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। एयर ब्रेक होता है, ब्रेक जो एयर ब्रेक आता है वो भी वैसे ही होता है। सो दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रेशर, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, ठीक है, जो कि डिफरेंट पोजिशंस में काम करता है। दिस इज जस्ट अ फ्लो चार्ट। ओके, ऑलराइट, सो व्हाट वी एग्जैक्टली रेड टुडे, हमने आज क्या पढ़ा, हमने आज पढ़ा व्हाट इज लिक्विड प्रेशर, दैट इज द प्रेशर विच इज exerted by the liquid in the stationary mode, it is said to be hydraulic liquid pressure. Okay, there is all the points in which the liquid is being touching the shape of the container, it is putting some amount of pressure. It does not depend upon any shape, it does not, it depends upon the depth of the container, जितना ज़्यादा डेप्थ होगा उतना ही ज़्यादा आपका प्रेशर बढ़ेगा और जितना ज़्यादा डेंसिटी होगा उतना ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। नाउ हमने क्या पढ़ा, वो एरिया में डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, इट प्रेशर डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया इन विच इट इज प्लेस्ड बट it is depending upon the perpendicular to that of the base. Okay, sidewise pressure it exerts, and liquid pressure at any point inside density and height, अच्छा ठीक है, and it depends upon height of the it does not depend upon, sorry, it depends upon the height of the container and density of the container, ठीक है। एंड एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन अ लिक्विड इन अ क्लोज कंटेनर एंड, और जितना जो भी पर्टिकुलर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट रहेगा हर जगह सेम टाइप ऑफ प्रेशर एक्सर्ट होता है, ठीक है। प्रेशर विद डेप्थ, जितना ज़्यादा डेप्थ उतना ज़्यादा उसका देखो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, उतना ज़्यादा प्रेशर है, जितना ज़्यादा डेंसिटी होगा उतना ज़्यादा प्रेशर है। और शेप ऑफ द कंटेनर में प्रेशर एक्सर्ट, प्रेशर डिपेंड नहीं करता, किसी भी शेप में रखो सेम ही टाइप का प्रेशर हर जगह एक्सर्ट हो रहा है। नेक्स्ट प्रेशर जो होता है तीन टाइप का होता है, दैट इज प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, यूनिट इज पास्कल। ओके, द सॉलिड लिक्विड एंड गैशियस प्रेशर में ये कुछ कुछ एग्जाम्पल्स। ओके, so I hope that you liked today's session, and if you liked it, do like, share and subscribe and share it among your friends. Okay, and that's it. Okay, if you have any doubt regarding any of the part of this chapter, you may tell me in the comment section below, I'll definitely answer. And I'll be seeing you next in the next session with the final concluding part of this chapter. Until then, if you have any doubt, let me know, and take care, have a good day, bye.